السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس، ناول جاڑے من کی ایپیسوڈ نمبر 18 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں ایسے فارغ بیٹھی ہو؟ شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو رہا ہے، کچھ خیال ہے؟ فائقہ بیگم لاؤنج میں آئی تو وہ نیم دراز تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اذیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جب سے زیاد نے اس سے نظریں پھیری تھی تب سے وہ خود سے لاپرواہ ہو چکی تھی، نہ چیک اپ کے لیے گئی دوبارہ اور نہ ہی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہی تھی۔ بھابھی بچی کو میں نہیں آرام کا کھایا، شکل دیکھ کے پیلی ہو رہی ہے۔ سومیا بیگم اس کے لیے اورنج جوس بنا کر لائی تو فائقہ بیگم کو آگے لگ گئی۔ ارے تو یہ انوکھا کام کرنے جا رہی ہے کیا جو اس کی ناز پر داریاں اٹھائی جائیں گی؟ اس کی زرد پڑتی شکل دیکھ کر طنز کیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مامی آپ کو اگر کوئی کام ہے تو مجھ سے کہہ دیں، کیونکہ اسے تو میں کچن میں گھسنے نہیں دوں گی۔ ہینا نے فائقہ بیگم سے کہا کہ منال کو پورا، کیونکہ ہینا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دوپہر کا کھانا اسی نے بنایا تھا۔ ہاں بھابھی، کھانا بھی بچی نے بنا دیا تھا، چلو جلدی سے ختم کرو۔ شاباش، اپنی نگرانی میں سے جوس پلوایا۔ فائقہ بیگم وہیں بیٹھ کر کڑ رہی تھی۔ ماہی چیک اپ کے لیے چلیں آج میرے ساتھ، ہینا نے اس کی کنڈیشن دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ کافی دن سے زیان کی اس سے لاپرواہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، فائقہ بیگم کی غصیلی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آؤ لان میں چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہینا کے کہنے پر بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور شام کے 6 بج رہے تھے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ اور ہینا بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ماہی سچ بتاؤ، تمہارے اور زیان بھائی کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ ہینا کو وہ بہت بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ میرا سادی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ماموں کے پاس ہو رہا ہے، وہ جانتی تھی مناہل اور سعد کے آپس میں بہت بنتی تھی۔ ماہی میری دعا ہے کہ تمہاری بیٹی اور پھر میں اسے اپنی بہو بناؤں گی، ہینا نے خوشی سے چہک کر کہا تو مناہل سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر یکدم کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ یا اللہ ہینا، کیا ہوگا تمہارا؟ ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ کیوں تمہیں میرا بیٹا پسند نہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ اس نے گھورا تو مناہل اپنے ہنسی کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا بابا کر لینا بس، بلکہ جاؤ شاپنگ کر لو جا کر ابھی سے شادی کی۔ لب کا کونا دبا کر اسے چھیڑا تو وہ بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، بچپن میں سے والد کے انتقال کے بعد ماں نے ہی پرورش کری تھی، مگر ابھی ابراہیم انڈسٹریز میں جاب شروع ہی ہوئی تھی کہ ماں بھی چل بسی۔ تب سے سدرا بیگم اور ابراہیم صاحب نے ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ دن بدن ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا، انہیں اپنے ماں باپ کا درجہ دے چکا تھا، مگر عشا ابراہیم کے معاملے میں اس کا دل کب بغاوت کر بیٹھا اسے خود معلوم نہیں تھا، ورنہ خلیلی پھولوں جیسی لڑکی کب اس کے دل میں اتر گئی تھی اسے خود پتہ نہ چلا تھا۔ وہ جو اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، کبھی ملازم سے زیادہ کی حیثیت نہ تھی، اس کو ایک نظر دیکھ کر سارا دن اطمینان سے گزار لیتا تھا، مگر ٹھیک ہی تو کرتی تھی۔ وہ تھا ہی کیا اس میں نارمل سی پرسنالٹی والا شخص جس کے باپ کا سیکرٹری تھا، اسے اہمیت وہ کیوں کر دیتی، کیوں اپنی سطح سے نیچے آتی؟ کن خیالوں میں گم ہے مسٹر، آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے جھنجھلا کر بولی، جبکہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر پل کے لیے گڑبڑا سا گیا۔ میم آپ یہاں؟ وہ قدر سنبھل کر بولا، کیوں میرا آفس آنا منع ہے؟ وہ تب بھی اٹھی، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا لیو اٹ، بابا کہاں ہے؟ کب سے پوچھ رہی ہوں تم سے، مگر نہ جانے کہاں دماغ ہے۔ سرخ ٹاپ کی طرح چہرہ بھی کچھ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ میم وہ سائٹ پر گئے ہیں، ابھی واپسی میں ٹائم لگے گا۔ نظریں جھکا کر مؤدب انداز میں بولا، تو تم کیوں نہیں گئے؟ انداز مخصوص مالکانہ تھا۔ مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، یہاں میری ضرورت تھی۔ اس کے ہر سوال پر جواب دیتا اسے مزید جھنجھلا گیا۔ خواہ کی ایک طرش نگاہ اس پر ڈال کر تن فن کرتی اس کے کیبن سے نکل گئی۔ فاروق کی نگاہوں نے دور تک اس نخریلی لڑکی کا پیچھا کیا تھا اور تھکے تھکے انداز میں سر چیئر کی پوچھ سے ٹکا کر ایک بار پھر اپنی لاحاصل محبت کا درد خود میں اتارنے لگا۔ جانتا تھا اس محبت میں اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ باہر تیز بارش اپنے آپ عذاب کے ساتھ برس رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ بال جھٹک کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں آ گیا۔ وہ دشمن جہاں جائے نماز پڑھی پڑھی سو رہی تھی جب سے زیاد نے اس کی پرواہ کرنی چھوڑی تھی۔ وہ بھی خود سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے تنگ کر دیا، بیگ غصے سے صوفے پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ مناہل اٹھو جہاں سے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا تو گہری نیند سو رہی تھی۔ ناک اور لب بالکل سرخ ہو رہے تھے، شاید وہ روتے روتے سوئی تھی۔ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں اس کے چہرے پر جھکا معصوم نقوش اپنے دل میں اتارنے لگا۔
न जाने कितने दिन बीत चुके थे उसका लम्स महसूस किए उसके लबों को आहिस्ता से उंगली से छूने लगा। मनाहिल को अपने लबों पर कुछ महसूस हुआ तो यकदम ही पट से आंखें खोली। इसे खुद पर झुका देख गड़बड़ाकर उठने लगी, मगर वो रोक गया। ये कौन सी जगह है सोने की? उसके बाल कान के पीछे करते नरम लहजे में बोला। तब मनाहिल ने हैरत से उसे देखा। आज न जाने कितने दिन बाद वो उससे पहले दिन की तरह मुखातिब हुआ था। वो खुद को ऐसे तख्ता पाकर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर करीब झुकने लगा, मगर मनाहिल यकदम ही होश में आ गया और फौरन चेहरा दूर किया। आखिर चाहते क्या हैं आप दूर रहे मुझसे। उसके हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी, मगर उसकी आंखों में यकदम एक खून उतर आया। जानना चाहती हो क्या चाहता हूँ? गिरफ्त सख्त करते उसके चेहरे को मजीद करीब किया। दिल चाहता है कहीं बंद कर दूं तुम्हें ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा राब्ता दुनिया से ख़त्म हो जाए। बोलो कैसे? बर्दाश्त करोगे फिर वहाँ सिर्फ मुझे? जुनूनी अंदाज में कहा था। मनाहिल के रोंगटे खड़े कर गया। उसकी सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। कैसी कैसे बातें कर रहे हैं आप? हटे। उसके सीने पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से धक्का दिया और दूर होकर गहरे सांस लेने लगी। क्यों? डर लग रहा है मुझसे? ये दिल में कोई चोर है? अजीब से अंदाज में बोला। उसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। मसला क्या है आपके साथ? जब नहीं मुझ में इंटरेस्ट मोहब्बत किसी और से करते हैं तो क्यों कर रहे हैं ये सब? रोते हुए चीख उठी। ज़ियान ने गहरी नज़रों से उसका जायजा लिया। तुम्हें तड़पा कर सुकून मिलता है, मेरे लम्ब से चिढ़ती हो ना? उसके करीब आया तो वो साइड से निकल कर बेड के पास आ गई। जब आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आपको मुझसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, समझे आप? अपने गारा करती बेड पर टिक गई। और तो प्लानिंग की जाए मुझसे आज़ादी हासिल करने की। उसके बराबर में बैठकर तंज किया तो वो उसके संग दिल को देख कर रह गई। मेरी औलाद तुम्हारे अंदर सांस ले रही है, तब तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। उसे खुद से करीब करते संग दिली से बोला। वो सिर्फ मेरी औलाद है, आपको कोई हक नहीं। आंखों से लड़ियाँ निकलने लगी। वो सिर्फ मेरी हो कि ख्याल रखो उसका। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, आई समझ? दुपट्टा गले से खींच कर उसके आंसू रगड़ डाले जो हिचकियों से रो रही थी। एक सेकंड में बंद करो अपनी आवाज़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त लहजे में वार्न किया तो वो रोती हुई वॉशरूम में जा घुसी। वो अपनी उंगलियों से कनपट्टी दबाता बेड पर गिर गया। वो कभी इस लड़की को दुख देना चाहता था, मगर जब से उसके दिल के राज पता चले थे उसका बस नहीं चल रहा था इस शख्स को जान से मार डाले। 10 मिनट बाद वो बाहर निकली तो झपके मारने से आधी से ज़्यादा गीली हो चुकी थी। ज़ियान की गहरी नज़रें खुद पर महसूस हुई तो सुर्ख पड़ते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। जल्दी से सूट निकाल कर ड्रेसिंग में जाने लगी। जब वो फिर सामने आ गया उसने नफ़रत से निगाहें मोड़ कर साइड से निकलना चाहा, मगर वो कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। छोड़े मुझे आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? धक्का देकर उसे पीछे किया जो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला था। इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर लगाए तो वह सहमी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। प्लीज़ छोड़ें, मेरे बैक में पेन हो रहा है, उसने डर कर कहा तो ज़ियान ने हाथ छोड़ दिए। वो फौरन बैठकर पीछे खिसकी। इधर आओ। उसकी गंभीर आवाज़ पर उसने सहम कर नमी में सर हिलाया तो खुद ही जारहाना अंदाज में उसके करीब आ गया। जानती हो तुम्हारा मना करना मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा देता है जिसमें दिल चाहता है अपने साथ तुम्हें भी खाक चर कर दूं। उसके बाल पकड़कर पीछे झटका दिया तो मनाहिल की चीख निकल गई। वो इसे बेबस करता जा रहा था जब भी उसका खून बच उठा, मगर ज़ियान ने तवज्जो न दी तो उसे जाने भी कोई डीट बैठा था। ज़ियान ने गुस्से से हाथ बढ़ाकर खून उठाया। वो जो आंखें सख्ती से नीचे थी। ज़ियान बख्शी पर पट से आंखें खोली। हेलो, यस, ज़ियान हैदर स्पीकिंग। अपने गंभीर लहजे में बोला। वो लब काटते उसका हाथ हटाने की कोशिश में थे। व्हाट? जस्ट शट अप। यकदम ही दौड़ता हुआ उठकर बैठा। मनाहिल ने सहम कर उसके प्रति रीले तासरात देखे। ओके, आई एम कमिंग राइट नाउ। इजरत में खड़ा होता फोन काट के मनाहिल में इतनी हिम्मत न थी कि उससे वजह पूछती। शर्ट पहनकर कीस वगैरह लेकर निकल रहा था जब एक नज़र सहमी बैठी मनाहिल को देखा। दिल इस पल बहुत जोर से धड़का था। वापिस आऊं तो जागती हुई ना मिलो, समझी? इसे वार्निंग देता बाहर निकल गया जबकि अपने रब से सब खैर होने की दुआ करने लगी। दिल में अजीब अजीब वहम आने शुरू हो गए थे। नम आंखें बंद करती बेड ग्राउंड से सर टिका गई। सुबह 7 बजे के करीब उसकी आँख खोली तो रिदा और रीना को अपने बराबर में बैठे पाया। वह हैरानगी से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ? तुम लोग जहाँ? फौरन सीधी हो बैठी। पागल लड़की, ये सुबह सुबह यहाँ आ गई और कहने लगे तुम्हारे साथ नाश्ता करना है। इन्होंने खुद को संभाल कर बताया तो यकदम मुस्कुरा उठी।
तो ठीक किया ना, आओ नाश्ता करते हैं। रिदा के गाल पर हाथ रख दी उठ खड़ी हुई। वो घर पर नहीं आई क्या? मनाले वॉशरूम खाली देखकर पूछे तो वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा गई। माई सुगरा नाश्ता ला रही है, जल्दी आओ, जान भाई नीचे है। हिना के कहने पर उसे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मुंह धोकर बाहर निकली और नाश्ता करने बैठ गई, मगर जूस के अलावा और कुछ न लिया। जबकि वो दोनों लब से ही बैठी थी, अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई तो इसका दिल घबरा उठा। ये ये कौन रो रहा है ना इस वक्त? दरवाजे की तरफ देखकर इन दोनों को देखा जो बहुत खामोश थी। मुनाहिल का दिल घबराने लगा। क्या बात है, तुम दोनों इतनी खामोश क्यों बैठे हो? दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो वो दोनों भी उसके पीछे ही आ गई। जैसे जैसे सीढ़ियों के नज़दीक आ रही थी, दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। नजरें लाउंज के बीचों बीच गई तो कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए। दोनों ने जल्दी से उसे थामा। कौन है ये? पीली पड़ती रंगत के साथ लाउंज के बीचों बीच रखे जनाजे और इर्द गिर्द जमा लोगों को। फिर इन दोनों को देखा। वो भी आवाज़ आंसू बहा रही थी, उसे सहारा देती नीचे लाने लगी। मनाहिल मेरी बच्ची, चाची जान ने रोते हुए करीब आकर उसे गले लगा लिया। बेटा, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, बस तुम अपने माँ बाप की माफ़रत की दुआ करो। चाची जान के अल्फाज थे जब हम उसके हिसाब पर गिरे थे। यकदम इनसे अलग हुई, यानी ये दोनों जनाजे उसके माँ बाप के थे। हवा में ऑक्सीजन जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कौन रो रहा है, क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ न आया। उसका वजूद बिल्कुल सुन पड़ गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो उम्र भर के यहाँ आहिस्ते से खुद कलामी करते इन्हें देखा। मामी भी उसके नज़दीक आ गई। मेरी बच्ची, सब्र करो, नरम लहजे में कहती जनाजे के पास ले आई। वो सख्ती की कैफियत में खड़ी सबको देख रही थी। जब दुआ पाक उसके गले आ लगी। आप ही मामा बाबा चले गए हमें छोड़कर, आप ही अब क्या होगा? वो शिद्दत से फूट फूट कर रो रही थी। मुनाइल ने उसे खुद से लग करके आंसू पूछे। दुआ, पागल हो, वो दोनों उम्र भर गए हैं। उसे डांट कर बोली तो सभी वहाँ मौजूद उनके गम में शरीक थे। माही, मामू का प्लेन क्रैश हुआ था कल, इन्हें रुंधी आवाज़ में गले लगाते हुए बताया, मगर वो बिल्कुल गुमसुम हो चुकी थी। फिर न जाने कौन कौन उसके करीब आकर दिलासा देता रहा, मगर वो खामोशी से बैठी रही। आंख से एक आंसू न गिरा था। तूबा और फात भी आ चुके थे, मगर इसे किसी का होश न था। बस जनाजे से लगकर बैठी रही, लेकिन इतनी हिम्मत न थी कि कपड़ा हटाकर उनके चेहरे का दीदार करती। अभी उसने नज़र उठाकर देखा तो नम आंखें लिए उमर खड़ा था। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ऐसे? उसने आमते लहजे में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैन भी वहीं आ गया था, क्योंकि जनाजे उठने का वक्त हो चुका था। वो इसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगा। अपने मामा बाबा चले गए दोनों, तो अभी उनके पास आ गई। वो दोनों बहन भाई को सीने से लगाए खामोश बैठी थी। आंखें थी कि बरसना भूल गई। उमर खड़े हो, शाबाश चाचू, रानी को छोड़ने चलो। उसे मुनाहिल से अलग करके मोहब्बत से बोला, मगर मुनाहिल के जैसे किसी ने रूह खींच लिया। कहाँ लेकर जा रहे हैं उन्हें? मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। उसकी कैफियत देखकर जिया ने यकदम ही उसे अपनी सार में ले लिया। मन, अल्लाह ने इन दोनों को शहादत की मोह नसीब की है, बस दुआ करो इनके लिए। अब लेकर जाना है उन्हें, उसने बहुत नरम लहजे में अपने साथ लगाकर समझाया। मगर वो बिफर उठी। मैं कहती रही कि मुझे भी जाने दे, मगर किसी ने जाने न दिया। आज वो लोग अकेले न होते। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे थे, मगर इसके बाद जहन के दिल को चीर कर रख दिया था। मन, संभालो खुद को, यकदम दहाड़ उठा था। हिना और रिदा भी पास आ गई। वो शिद्दत से रोती उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से मैं ना जा सकी। अब मैं किसकी गोद में सर रखूंगी? अभी तो मामा का लम्स महसूस न किया था। अभी तो हमने ठीक से उनका प्यार भी न पाया था। पापा कहाँ चले गए? अच्छा हिना प्लीज़, रोते रोते निठाल से उसके सीने से लग गई। जैन ने किसी कीमती मता की तरह अपने सीने में समो लिया। कैसा सीतम था, कैसी क़यामत थी, हर तरफ शोक था। दोनों आगे आने मौतों पर हर आँख नम थी। बस बस मेरी जान। धीरे से उसके कान में सरगोशी की, मगर वो हिचकियों से रोते रोते बेहोश हो गई। मनाहिल, उठो, रिदा पानी लाओ। उसके साकर वजूद को देख चीखा तो रिदा पानी लेने भागी थी। दूर बैठी शाह ने नखुआ से मुंह फेर कर अमीन को देखा, जो खुद भी दुखी माँ के पास बैठी थी। चीची जान जूस भेजे रूम में, उसे गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। रूम में लाकर एहतियात से बेड पर लिटाकर छींटे मारे। फनी मौजूदगी में बस इन दोनों को पुकार रही थी। सियान की आंखें गम की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुकी थीं। जब रात में उसे कॉल आई तो शौक से पागल हो गया था। हॉस्पिटल वालों ने इसे शनाख्त के लिए बुलाया था। फिर तमाम इंतजामात मुकम्मल करवा कर वह सुबह एम्बुलेंस के साथ घर लौटा था। आहिस्ता से उसका माथा चूमकर दूर हो गया। हिना इसके पास रहना, एक नज़र अपनी दुश्मनी जहाँ पर डालकर बाहर निकल गया।
फरार साहब और फातिमा बेगम को गुजरे 1 माह हो चुका था। तमाम अफराद आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर लौट आए थे। सौम्या बेगम के ज़बरदस्ती करने पर दुआ और उमर ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। रिदा और तुपा भी 2 बार चक्कर लगाकर जा चुकी थी। जियान भी आजकल बिजी था, मगर ऑफिस से फिर भी जल्दी आने की कोशिश करता था। मनाहिल से उसका रवैया नॉर्मल था, मगर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ना उससे बात करती थी, ना ही उसके सामने ज़्यादा आती थी। घर में अब भी एक शौक की फिजा छाई हुई थी। मुर्तज़ा साहब की तबीयत भी भाई की मौत के बाद ख़राब रहने लगी थी। पप्पू, ये जियान क्यों नहीं आया अभी तक? ईशा इधर आई हुई थी। उसका प्लान आज जियान के साथ आउटिंग का था। क्या करेगा जल्दी आकर कर मनहूस से चुप फैलाई हुई हर वक्त। फातिमा बेगम ने लाउंज से गुजरती मनाइल को देखकर तंज किया। पप्पू, परेशान ना हो, मैं हूं ना। सारी मनहूसियत आपको आपकी और जियान की ज़िंदगी से बहुत जल्द दूर कर दूंगी। इन्हें अपने साथ लगाकर बोली तो इस पर निहाल हो गई। मनाइल उनकी बातों पर कान धरे बगैर अपने रूम में आ गई। उसे डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। उसे इन लोगों के साथ रहने का सब कोई अरमान ना था। वो जानती थी उसके माँ बाप की मौत की वजह से जियान आजकल उस पर तरस खा रहा था, लेकिन वो इतनी गई गुजरी न थी कि किसी शख्स की ज़िंदगी में एक बोझ की तरह शामिल रहती। और अब जबकि उसका बाप भी जिंदा ना था, तो जियान हैदर खुद भी अपनी राह में कोई मजबूरी का पत्थर बर्दाश्त ना करता। कमरे में आकर लेट गई थी। बीपी भी काफ़ी लो हो रहा था। आंखों में खुद ब खुद नमी जमा होने लगी। बाबूजी, कैसे शख्स मेरे लिए मुंतखब कर गया आप, जिसने ज़िंदगी के सफ़र के शुरू में ही मुझे तनहा छोड़ दिया। ये सफ़र मैं कैसे काटूंगी? तो आंसू से निकल कर कनपटियों में जज्ब हो गए। यार, बहुत थक रहा हूँ, फिर कभी का प्लान बना लो। कंधे पर कोट डाला जियान ईशा के साथ दाखिल हुआ तो वो सीधी होकर बैठ गई। जियान की नज़रें उसके सते हुए चेहरे पर उठी। नहीं प्लीज़, अभी चलो। इतने दिन हो गए ना हम आउटिंग की और ना ही शॉपिंग। तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। उसके टाई पर हाथ फेरते लगा उसे बोली। मनाइल ने बस एक नज़र में देखा, फिर उठकर रूम से जाने लगी। मेरे कपड़े निकालो। जियान के पास पर ठहरी और बगैर इनकी जानिब देखे कपबोर्ड में से कपड़े निकाल कर बेड पर डाले और बाहर निकल गई। जियान को उसकी खामोशी अज़ियत में मुब्तला करने लगी थी। ईशा ने उसको सोच में गुम देखकर हिलाया। जियान, कुछ कह रही हूँ मैं? रूठ कर बोली तो वह गहरी सांस भरकर रह गया। आई एम सॉरी ईशा, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर किसी दिन चलेंगे। उसे टालता वॉशरूम में घुस गया। ईशा का बस नहीं चल रहा था कि इस मिसनी को जान से मार डाले। पैर पटकती पोर्च में आई तो मुनाही लॉन में बेंच पर बैठी हुई थी। क्या हुआ? शौहर रूम में और बीवी लॉन में लड़ाई हो गई क्या? इंतहाई मासूम ने से आंखें पटपटाकर उसे देखा, मगर वो खामोश रही। मैंने नहीं कहा था तुमसे मनाइल कि तुम बस एक मजबूरी हो उसके लिए। मैं जियान की मोहब्बत हूँ और बहुत जल्द तुम्हें फारिग करके हमारा शादी का इरादा है। उसके बेतासा चेहरे को देखकर तो मुस्कुराने लहजे में बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसके लिए यह खबर नई न थी। जब वो इससे लड़ती या झूठा कहती, इन चंद दिनों में उसने खुद को तैयार कर लिया था आने वाले दिनों के लिए। रमीन, अगर तुम घर से जाती हो तो बता कर तो जाया करो बेटा। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थे जब फायजा मलिक ने उसे प्यार से कहा। अब मैं फ्रेंड्स के पास भी बता कर जाऊंगी। उसने चमचा प्लेट में रखते नागवारी से कहा। नहीं बेटा, मैं परेशान हो गई थी, तुम कॉल भी नहीं उठा रही थी। उसे समझाना चाहा। आखिर आप क्यों कॉल्स कर रही थी? मैं क्या कहीं और चली जाती? उसने झिंझला कर कहा। शट अप, ये किस लहजे में मामा से बात कर रही हो? वो कहाँ अपनी माँ से बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मोहित, उसने कहना चाहा मगर वो रोक गया। आइंदा इन्फॉर्म करके जाना और आवाज़ नीचे रखकर बात करना मामा से। ये जबान खाता चेयर खिसकाता कमरे में चला गया। रामीन ने एक नज़र फायजा बेगम को देखा और लब काटती हुई खुद भी उसके पीछे गई थी, क्योंकि मोहित को नाराज करके उसकी भूख प्यास दूर जाती थी। रूम में आई तो वो लेटा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। मोहित, करीब आकर उसे पुकारा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसके बराबर में आकर बैठ गई। नाराज हो उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम आइंदा मामा से इस तरह बात नहीं करोगी? उसने सख्त लहजे में कहा, वरना फिर मैं सर हिलाया। कभी भी नहीं, बल्कि अभी सॉरी करूंगी। उसका काला पकड़कर ठीक करने लगी। वो कुछ न बोला, क्योंकि वो ऐसी ही थी जो बात से नागवार गुजर जाती दोबारा नहीं करती थी। अब अब भी नाराज हो? उसकी आंखों में देखकर मासूमियत से बोली। नहीं, जाओ खाना लाओ। उसके माथे पर किसकी वो जानता था उसने भी नहीं खाया होगा। वो यकदम ही खिल उठी। ओके, अभी लाई। उसका गाल चूमकर कमरे से निकल गई। मोहित भी गहरी सांस लेता वापस लेट गया। अली, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप सुन ही नहीं रहे? गुस्से से कहकर उठने लगी। वो घर जाने का कह रही थी, मगर ऐसी बातों पर अली फौरन कान बंद कर लेता था। अच्छा, तुम चेकअप करवाने गई थी, तबीयत ठीक है? अली ने हाथ पकड़कर फौरन अपने पास बिठा लिया।
मुझे नहीं पता, अम्मी से पूछें, सुर्ख पर त्याज छुड़ाने लगी। क्यों, कोई सीरियस बात है? फिक्रमंदी से उसका चेहरा था। माधुरी शर्मा का रुख मोड़ गई। ललिता, अब तुम मुझे डरा रही हो, उसका रुख अपनी तरफ करके गुस्से से बोला। मगर जब उसके चेहरे पर पहले रंग देखे तो न समझी उसे देखने लगा। ललिता ने उठकर साइड ड्रॉर में से रिपोर्ट निकाली और उसके आगे रख दी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच अल्लाह। रिपोर्ट पढ़कर से अपने करीब किया। बता नहीं सकती थी, डरा दिया मुझे। उसकी थोड़ी पकड़कर उसने गोरी नवाज कर मुझे तो शर्मा कर उसके सीने से लग गई। गीता, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारे साथ हमारे बच्चे भी मुझे तंग करेंगे। उसे खुद में समोकर मुस्कुराते हुए बोला। क्या मैं तंग करती हूँ आपको? झटके से अलग होकर घूरने लगी। हाँ बहुत, हमेशा दूर भागती रहती हो। उसे फिर से करीब करने लगा। दूर हटी, मुझे घर जाना है, मामा और मनाहिल से मिलना है। साथ भी इतना याद आ रहा है। मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो अली उसे घूरने लगा। ये मेरे अच्छे मूड को कायम नहीं रह सकती तुम। और जो न्यूज़ अभी सुनाई है, आज तो बिल्कुल भी नहीं, कॉल कर लो बस अभी मनाहिल को। इसे खुद पर गिराते आसान सा हाल दिया तो वह मुंह बनाती हुई उसी के मोबाइल से कॉल करने लगी। हेलो। सियान की गंभीर आवाज़ आई तो रिता एकदम सीधी हो गई। हेलो सियान भाई, माही कैसी है? उससे बात करने के लिए फ़ोन किया था। उसके फ़ोन उठाने पर रिता ने वसाहत दी। हाँ अभी तो यही थी, शायद वॉशरूम में है। सियान ने बालकनी वगैरह में झांक कर देखा जहाँ वो नहीं थी। वो अभी ऑफिस से वापस आया था। तबीयत कैसी है उसकी? रिता ने उसी से पूछ लिया। आई थिंक ठीक है अब, उसने हमसे लहजे में बताया तो रिता ने एक दो बातें करके फ़ोन रख दिया। वो बेड पर लेटा उसका इंतजार करने लगा। ये लड़की उसे अब ऐसे दूर भाग रही थी जैसे उसे खा जाएगा। उसका मोबाइल हाथ में लिए घुमा रहा था, फिर अनलॉक करके उसके डेस्कटॉप पर लगी दुआ इसकी और उमर की तस्वीर देखने लगा। मोबाइल चेक करते करते मैसेजेस में चला आया, जहाँ कल रात मोहित का मैसेज अब तक ऐसे ही पड़ा था। तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? मैं कल बाबा और अंकल आंटी की खबर पर गया था। फ़ोन पर गिरा तो खुद ब खुद सख्त हो गए, मतलब अब भी कॉन्टैक्ट में है। ऊपर तक पूरी चैट चेक की मगर हाय हेलो से ज़्यादा कुछ ना था। दरअसल मोहित के कहने पर मनाहिल से अनब्लॉक किया था। वो अब खुद भी अपनी हदूद जान चुका था, इसलिए हाल अहवाल से ज़्यादा न पूछता था, जबकि सुबह से वो अक्सर कॉल पर भी बात कर लेता था। लेकिन मनाहिल हैदर की ज़रा सी बेहतियाती उसके लिए अज़ाब बनने वाली थी। बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे। मोबाइल थोड़ा सा टेबल पर फेंका, तभी वो वॉशरूम से नहा कर निकली थी। जैन ने एक गुस्सैली नज़र उसके सर तड़पड़ते चेहरे पर डाली और उसकी तरफ बढ़ गया। कब से चल रहा है ये सब? सच बताना नहीं तो जान से मार दूंगा। उसकी थोड़ी पकड़कर सख्ती से पूछा। वह हैरान परेशान न समझी से उसे देखने लगी। छोड़ो मुझे, क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं? अपनी थोड़ी चुड़ाती बेबसी से बोली। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, आज मान गया मैं भी। जहर आलू लहजे में पुकारा तो वो साकत उसे देखने लगी। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है, समझे आप? उसे धक्का देती दूर हुई। अच्छा तो क्या है भेजिए। उसका मोबाइल उठाकर मोहित का मैसेज सामने किया। क्यों करता है वो तुम्हें मैसेजेस? आखिर ताल्लुक क्या है तुम्हारे साथ उसका? उसके साथ? हाँ बोलो। उसे बाजू से पकड़कर झंझोर डाला। बस नहीं चल रहा था, इस शख्स का रेशा रेशा अलग कर दे। मुझसे बेवफाई का सोचा भी कैसे तुमने? मनाहिल हैदर बोलो। वो गरजदार आवाज़ में दहाड़ा तो उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। मैं मैं कसम खाती हूँ, मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो यूनी टाइम से दोस्त हैं बस। उसने लरजते हुए यकीन दिलाना चाहा, मगर उसके सर पर तो जैसे खून सवार था। पागल समझ रखा है मुझे? बच्चा हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? बोलो। गुस्से से उसे झंझोर डाला। मैं मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं आता तो तू से पूछ ले प्लीज़, मगर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए। उसने सिसकते हुए उसकी आस्तीन पकड़ी, जिसे वह फौरन छुड़ा गया। अच्छा चलो ये इल्ज़ाम है, तो जो रामीन की मायूं के दिन हकीकत खुली थी वो क्या था? उसे कटहरे में खड़ा किया इसका एहसास कर रहा था। क्या सुना था आपने? ताइया ज़्यादा उसे देखने लगी। मैं वही था जब रामीन ने तुम्हारी हकीकत खोली थी। तुम जैसी धोखेबाज लड़की से शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। उसे बेड पर धक्का देते चीखा वो कराह कर रह गई, चेहरे पर जैसे छाने लगी। सियान के बदले में रवैये की वजह आज मालूम हुई तो दिल चाहा बता दे कि तुम्हारी बहन है इस सब कसूरवार, मगर इस बेएतबार शख्स को अब कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी। आप तो वैसे भी मुझे छोड़ रहे थे, अब तो रीज़न भी मिल गया आपको, तो मसला नहीं होना चाहिए था। आंखों से आंसू रगड़ते पूरे अच्छे अंदाज में मुस्कुराई तो सियान उसके करीब आ रुका। मनाहिल हैदर, तुमने मुझसे सियान हैदर से फ्रॉड किया है। तुम्हें इतनी आसानी से तो कभी नहीं छोड़ूंगा।
साथ लहजे में पुकारा मगर मनाहिल ने एक नफरत अंगेज निगाह इस पर डाली। आप और कितना गिनेंगे और कितनी हैसियत मुझे देंगे? मैं खुद एक पल अब आपके साथ नहीं रहूंगी। उसे धक्का देकर आंसू रगड़ दी। अलमारी की तरफ बढ़ने लगी मगर अचानक की दर्द की शदीद लहर वजूद में दौड़ उठी। आह! पेट पकड़ कर बैठती चली गई। वो जिसके जुनूनी अंदाज पर काट था, निगाहों से घूर रहा था। उसके गले पर सब कुछ भुलाए भागता उसके पास आया। मनहल, क्या हुआ तुम्हें? उसके दर्द भरते चेहरे को देखकर एकदम बेचैन हुआ। आह! मामा, बा, बाबा! उसे खुद से दूर करती दस्ती तरफ भी बेजान हो चुकी थी। मन मन बात करो प्लीज मुझसे। उसका गाल थपकता पागलों की तरह पुकार रहा था मगर वो बेसुध पड़ चुकी थी। नब्ज टटोली जो बहुत मतम चल रही थी। ओह गॉड! अपनी बाहों में उठाता नीचे आया तो सब वहीं थे। मनाहिल की हालत देखकर यकदम ही परेशान हो गए। क्या हुआ बेटा? मनाहिल को सोमी बेगम और हम पीछे आए मगर जान को इस वक्त सिर्फ अपनी मताई जहाँ की परवाह थी। गाड़ी में लेटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राय में मन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, सबको बता देना। राम को देखकर कहता गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मुसलसल 3 घंटों से बेबसी से चक्कर काटता पागल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या कर जाए। ध्यान बैठ जा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राहम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हिना भी बस दुआएं कर रही थी। तो बता क्या करूँ? कमीने डॉक्टर्स 3 घंटे से बंद हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। राम के दिलासे पर वो एकदम ही फट पड़ा। बेटा वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम भी सब्र करो। मुर्तज़ा साहब ने हौसला दिया मगर उसे एक पल चैन ना था। अपनी बेबसी पर दिल चाह रहा था सबको आग लगा डाले। बार बार आंखों के सामने उसका जर्द आंसू से भरा चेहरा आंखों में घूम रहा था। सर दोनों हाथों में देता सख्ती से आंखें मीच गया। ज़ियान बेटा दुआ करो बस। सोमी बेगम के भी उसके पास आकर मोहब्बत से बोली। बहुत सब्र कर चुका हूँ मगर इन लोगों ने मन की एक बार भी बेकर के इस हॉस्पिटल को आग लगाने में एक पल नहीं लगाऊंगा। आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख कर जुनूनी अंदाज में बोला तो मुर्तज़ा साहब ने राम को उसे बाहर ले जाने का इशारा किया। चल ज़ियान, तो यहाँ से थोड़ी देर, उसने नरमी से कहा मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। फाइका बेगम ने बेबसी से बेटे की हालत देखी। जब भी आईसीयू का दरवाज़ा खोला था और एक नर्स और डॉक्टर बरामद हुए, ज़ियान तेजी से उनके पास आया। डॉक्टर कैसी है? मनाहिल बेताबी से डॉक्टर से पूछा। मुबारक हो, बेटी हुई है आपके यहाँ। और इस वक्त अपनी बेटी से ज़्यादा अपने कुलमदा की फिक्र थी। अब मनाहिल की जान तो खतरे से बाहर है ना? उसने बेचैनी से पूछा। देखिए मिस्टर ज़ियान, मैंने आपको पहले भी मिसेस मनाहिल की बहुत देखभाल का कहा था। इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, कोमा में भी जा सकती हैं, बस आप दुआ करें। डॉक्टर ने बेशरम अंदाज में बताया मगर वो तो जैसे पागल हो गया। क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम लोग क्या करें? इसे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझ आई? सारी लाश मुरम्मत बुलाए ताक रखकर डॉक्टर पर चढ़ दौड़ा। ज़ियान, मुर्तज़ा साहब जल्दी से बीच में गुस्से से उसे खामोश कराया। आई एम सॉरी डॉक्टर, प्लीज़ आप लोग अपना काम करें। डॉक्टर से माजरत करके राम के साथ बाहर भेज दिया। अगर मैं इसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जब से डॉक्टर्स ने उसे अगले 24 घंटे का वक्त दिया था, वो अपने रब के आगे बैठा इल्तिजा कर रहा था। वो लड़की उसकी औलाद को दुनिया में लाने वाली थी मगर जब से रामीन से हकीकत सुनी थी, उसके साथ से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। बस हर पल अजीयत ही तो दी थी उसे। मगर अब बेबसी की तस्वीर बना हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में बैठा उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। नमाज पढ़कर बाहर निकला तो कॉरिडोर में बैठी दुआ की उम्र के साथ बैठी सिसक रही थी। दुआ बेटा दुआ करो, शाबाश, कुछ नहीं होगा उसे। उसके बराबर में बैठकर अपने साथ लगा लिया। ज़ियान भाई, अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? पहले मामा पापा और अब आप की तबीयत। उसने तड़प कर पूछा तो ज़ियान को अपनी आंखों में मिर्चें भरती महसूस हुई। नहीं, दुआ करो, कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। उसे दिलासा देते अपने साथ लगा लिया। सभी जब से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, उसके मामू को भी कोई खबर नहीं दी गई थी। इसी वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो ज़ियान फौरन उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर कैसी है? वो उसके बेचैनी पर डॉक्टर मुस्कुरा दी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ज़ियान, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर की चुंगली ने जैसे उसके जिस्म में रूह फूंक दी हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वो तशक्कुर से बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। सुबह तक इन्हें होश हो जाएगा, फिर हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर के कहने पर आईसीयू के दरवाजे से अपनी दुश्मनी झाँक को देखने लगा। जब को जद पड़ चुकी थी, उसने सख्ती से अपना लब खींच लिए। मुबारक हो मेरे यार, फहद ने आते उसे सीने से लगाया था। उसे अभी कॉल करके राम ने खबर दी थी। ज़ियान मुस्कुरा कर हैरान हुआ। मेरी प्रिंसेस कहाँ है?
उसने बेबी के बारे में पूछा तो जिहान को भी उसका ख्याल आया, क्योंकि वो मनाहिल के चक्कर में उसे भूल भाल गया था। इंक्यूबेटर में है, अभी डॉक्टर्स ने मिलने से मना किया है। राहुल ने डिटेल बताई तो वो खामोशी से आईसीयू में बेहोश पड़ी। मनाहिल को देखकर आंखें ठंडी करने लगा। कितना तड़पा था उस लड़की के लिए वो आज। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करता। अपने ख्यालों में गुम था जब बीजा की कॉल ने अपनी जाने मुतवज्जा किया। हाँ बोलो। कॉरिडोर से निकल कर फोन रिसीव किया। सियान कल से फ़ोन कर रही हूँ, कोई जवाब भी नहीं दे रहे तुम। यह यकदम में फट पड़ी। मनाहिल आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है यार, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है? सियान ने तासुब से कहा। तो तुम्हारी बेटी तो ठीक है ना, फिर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है इस लड़की की? तंजील लहजे में बोली तो जिहान को अपना जब्त टूटता महसूस हुआ। फजूल है तुमसे बात करना, उसे मलामत करता फ़ोन काट गया। राहम तो सबको घर ले जा, मैं हूँ मन के पास। मोबाइल जींस में रखता बोला। चल फिर मैं निकलता हूँ इन लोगों को लेकर। राम ने कहा तो दुआ और उमर भी वहीं आ गए। सियान भाई बीबी को तो देखा ही नहीं अभी तक मैंने, वो लोग देखने नहीं दे रहे। दुआ ने मुँह बसो होकर कहा। वो और राम दोनों मुस्कुरा दिए। बेटा सुबह आओगे तो देखने भी देंगे और मिलने भी। जियान उसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। लेकिन ये उमर कह रहा है मेरी गोद में नहीं देंगे, दुआ ने उसे घूर कर शिकायत की तो यकदम ही गड़बड़ा गया। ये मार खाएगा मुझसे, इसकी बातों पर ध्यान न दो। उनसे अपने साथ लगाता है, इन लोगों के साथ बाहर कार तक आया था। इन्हें थोड़ी देर पहले ही साथ को लेकर गई थी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। फाइका बेगम उसका माथा चूमकर कार में बैठ गई। इन्हें मलाइल से ज़्यादा इसकी फिक्र थी। वो भी सर हिलाता वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। इसे इस वक्त सिर्फ इन दो जानों की परवाह थी जो इससे वाबस्ता थी। जारी है। तो ये बस कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।